हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं टॉपिक डिटर्मिनर्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर सेक्शन एंड आज हम इनके बस के बारे में जानेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिटर्मिनर्स एंड हाउ वी यूज देम एंड वेयर वी यूज देम इन अ सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। Determiners are the words used before noun to determine its meaning. So determiners क्या होते हैं? Determiners ऐसे words होते हैं जिन्हें हम किसी भी sentence में noun से पहले use करते हैं और इनका काम क्या होता है? Noun के बारे में noun की meaning determine करना. So what is their use? To tell the to determine the meaning. Determine का मतलब होता है जानना. ये हमें help करते हैं noun की meaning जानने में. ठीक है, और इनको हमेशा क्या करते हैं? Noun से पहले use करते हैं. Okay, so predeterminers are the words used to express a proportion, two times, twice, half of, double, quite, rather. तो predeterminers क्या होते हैं? ये हमें और भी ज्यादा अच्छे से किसी noun को जानने में help करते हैं। और किस तरह से हेल्प करते हैं? ये किसी भी नाउन की कोई भी चीज के बारे में का प्रोपोर्शन बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, कितना है, ये सब हमें प्री डिटर्मिनर्स बताते हैं किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। हियर व्हाट इज द नाउन? बॉय इज द नाउन, राइट? So here what is determiner? Just can you just a good boy? You just tell me ki what is determiner here? A. Okay, A is a determiner who is telling that he is a good boy. We are talking about a boy, a good boy. A, वैसे normally we can discuss कि a क्या होता है? Article. We can know article. Okay, this novel is very interesting. This novel is very interesting. What is noun? Novel here is noun. So what will be the determiner? This. This is telling us, this is determiners which is telling us about the novel. What it is telling about the novel? That it is locating the direction, location of a novel. Where it is. It is showing you that location. He is telling ki this novel is very interesting. Okay. So it is showing you the location and how you'll get to know more by just seeing the types. किस तरह से determiners को classify किया गया है. जब आप ये जानोगे तो you'll understand these things. So let's see. So determiners को हमने classify किया है 1, 2, 3 and 4 types में. Okay, so types of determiners are of 4. First one is articles. So and the second was articles we all know are a, an and the. Right, now let's just talk about the second type, that is possessives. Possessives shows the possession. Possession means the ownership, right? Owns, when somebody owns anything, so we shows as a possession. Like my, this is my book. So I'm just telling about the ownership. I own that book. So this is showing possession. His, that is his car. तो his is showing the ownership. किसकी कार है? That particular person की. I am telling you his, her, your, its, their and all. Means possession. Possessive shows possession. Now demonstratives. Demonstratives means when we add this, that, those, they. Quantitative, one, two, some, more, few, much, every, all, each, little, everyone. All these things are quantitative. All these things are telling us about the quantity. कितनी है? One है, two है, थोड़ी है, ज्यादा है, much, every, all, each. So ये सब क्या है? ये हमें quantity बता रहे हैं. तो इन सारे types को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. Start with the articles. A and the. Articles क्या होते हैं? A and the. A and an are indefinite articles and are used when you're talking, obviously, about a general version of the noun. When you're talking about the general version of noun means A और N का use कम करते हैं हम. A और N, articles actually basically is divided into two parts, that is definite article and indefinite article, right? So यहाँ पे as we know articles A and the होते हैं, तो जो indefinite articles होते हैं वो होते हैं A और N. And when we talk about the definite article, it means we are talking about the. Indefinite से हमें समझ में आ रहा है जो चीज कोई definite नहीं होती है, जिसे हम general version में बात कर रहे होते हैं. तो जैसे suppose I am talking about a boy. When I'll say boy, a boy.
जनरल है, बॉय तो कोई भी हो सकता है, बॉय मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, आई एम जस्ट जनरल वर्जन में आई एम टॉकिंग सेइंग बॉय, सो आई विल यूज अ, राइट। एंड indefinite आर्टिकल्स में ए कहाँ पे यूज करते हैं और एन, विल गेट टू नो। ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, while एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवल्स। तो हम पहले वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स समझ लेंगे। तो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ एन यू। तो ये जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं ए ई आई ओ यू, इन्हें हम बोलते हैं वॉवल्स, राइट। और इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट। सो ए कब हम यूज करते हैं, ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट। बहुत क्लियर है, ए का यूज हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे कोई चीज, जब इंडेफिनिट चीजों की बात हो रही हो, जब किसी इंडेफिनिट चीज की बात हो रही हो और वहां पर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। जब कैसे वर्ड्स के आगे लग रहा है ए, जहां पे कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट से, तो वहां पर हम ए लगाएंगे, राइट। और कोई ऐसी इंडेफिनिट चीज जहां पे उस वर्ड का लेटर वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, इट मींस ईदर ई आई ओ यू और यू, ठीक है। तो इन सारे अल्फाबेट से अगर कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हम कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, एन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, फ्रांस इज अ कंट्री, इज अ कंट्री। कंट्री तो बहुत सारी है ना। फ्रांस क्या है, एक कंट्री है। इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री, ठीक है। अमेरिका इज ऑल्सो अ कंट्री। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री, इट मीन्स एक ये जनरल, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कंट्री की। एक, तो यहाँ पे हमने इंडेफिनिट में क्या यूज किया है, ए। क्यों, बिकॉज इस कंट्री का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज सी, ये क्या है, वॉवल नहीं है ऑब्वियसली, वॉवल में सी नहीं आता है, इट मीन्स इट इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने वहां पे क्या यूज किया है, ए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज हैंड मी एन एनवेलप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एनवेलप। एनवेलप भी कोई पर्टिकुलर नहीं है, इट इज अ जनरल वर्जन, कोई डेफिनेट बात नहीं हो रही है, इंडेफिनिट चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, दैट इज ए और एन। एन यहाँ पर यूज हुआ है क्यों, एज यू ऑल कैन सी, एनवेलप का फर्स्ट लेटर है ई, विच इज अ वॉवल। सो अगर कोई चीज वॉवल है, कोई चीज वॉवल है, कोई वर्ड में फर्स्ट लेटर वॉवल है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, एन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द, अब हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, दैट इज द। The is a definite article used when you are talking about unique things or specific things the both speaker and the listener know the identity of. तो द हम क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसका यूज हम जब बोल रहे होते हैं, हम किसी यूनिक चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ एक है, या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो एक से ज्यादा नहीं है, या जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक थिंग के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, कोई डेफिनेट चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम यूज करते हैं द। और ऐसी चीजों के साथ भी हम द यूज करते हैं जब कोई, जब द स्पीकर, लाइक सपोज आई एम द स्पीकर एंड यू ऑल आर द लिसनर, ओके, हम दोनों किसी चीज के बारे में बात करें। अब इफ आई से सपोज मून, यू कैन से इन द एग्जांपल आल्सो, इफ आई एम सेइंग मून, या तो क्या है, मून हमें पता है, अगर मेरे को पता है, मैं एम सेइंग मून एंड यू ऑल आर लिसनिंग द मून, हम सबके माइंड में क्या, एक मून ही आएगा, क्योंकि मून तो सबको पता है, इट्स यूनिक, इट्स ओनली थिंग, ठीक है। तो यूनिवर्सल चीजों के बारे में, तो वहां पर हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। फाइन, सो लेट्स सी द एग्जांपल, शी गेज द मून। अब शी गेज द मून, अब हमें पता है, अगर हम बोल रहे हैं कि वो मून को देख रही थी, इट मींस एक ही तो मून है, वी ऑल नो अबाउट द मून, राइट। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। अब ये किड्स, द किड्स के आगे क्यों आया है, किड्स तो जनरल होते हैं, बट क्या है, हमने क्या बोला था, the both speaker and the listener know the identity of, ठीक है। suppose I am telling someone that we are in a family, suppose we are in a family, I'm telling to someone that kids means the kids of our family are playing outside, तो I am talking about the kids, तो जिसे मैं बोल रही हूँ अपनी family member को, he also know that we are talking about our kids, ठीक है। तो ऐसे किड्स जिनके बारे में स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है,
ठीक है, हमारी फैमिली के किड्स हैं और हम दोनों जो बात कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो दोनों जानते हैं कि किड्स का मतलब यहाँ पे कौन से किड्स हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, द डेफिनेट आर्टिकल्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ determiners, that is demonstrative. So demonstrative क्या होते हैं, demonstratives होते हैं this, that, there, these, those. Demonstrative are used in situation in which the speaker can indicate the location of subject or can point to the item of they mean, making them more specific. So यहाँ पे हम ये बोल रहे डिटर्मिनर्स कैसे हम कहाँ यूज होते हैं, जब हम किसी सिचुएशन, मतलब मैं आई एम हियर एंड आई एम शोइंग यू द सिचुएशन, मैं आपको लोकेशन के साथ वो सिचुएशन बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, किसी नाउन की लोकेशन आई एम टेलिंग यू, जो भी सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो और मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि सी दैट दिस, तो मैं जब पॉइंट आउट कर रही हूँ किसी चीज को, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव. So for example, you can see here, this is a globe. Okay. So if I am saying this is a globe means this is the globe. You can see, all can see the globe. So I am telling you the location. This is the globe. ठीक है. Do you want this book? Suppose, तो मैं क्या बोल रही हूँ, I'm showing the book also. ठीक है. I am asking by showing the book. As you can say, I'm saying this is the book. Do you want this book? So I'm showing the book, the location, the situation. So I'm telling that thing also, that at that time we will use demonstratives, this or that. अगर कोई चीज पास है तो उसके लिए we'll use this. अगर कोई आप कोई ऐसी लोकेशन बता रही हो जहां पे आप हो, वहां से थोड़ा दूर है, तो आप उसके लिए that यूज कर सकते हो. there, those, these पास के लिए यूज होता है और those दूर के लिए. Okay. So next one is possessive. As I told you, possessive means showing the possession. ठीक है, ownership. So my, your, his, her, our, their. तो ये सब क्या शो करते हैं, इन वर्ड से हमें possession दिखता है, एक ownership दिखती है. As when referring to a noun that belongs to someone. See, I told you ownership मतलब कोई चीज किसी को belong करती है, और something we can use as possessive pronouns to show ownership. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, वेर इज योर बुक, किसकी बुक की बात हो रही है, आपकी बुक की बात हो रही है, तो योर से पता चल रहा है कि ये बुक कौन ओन करता है जिससे हम बात करें, योर. ओके. दिस इज माई स्केल मीन्स ये जो स्केल है इसे मैं ओन करती हूँ, सो आई एम टेलिंग माई स्केल, दिस इज शोइंग द ओनरशिप ऑफ माइन, आई ओ दिस स्केल. क्लियर. सो पोजेशन दिख रहा है यहाँ पे. सो ये भी क्या होते हैं, दी पोजेशन जो होते हैं, ये भी हम इनको डिटर्मिनर्स की तरह सेंटेंसेस में यूज करते हैं, बिकॉज ये बुक के बारे में बता रहे हैं, बुक इज अ नाउन हियर एंड योर इज द पोजेसिव डिटर्मिनर एज इट इज टेलिंग द ओनरशिप ऑफ द बुक. ये हमें बुक के बारे में बता रहा है कि किसकी बुक है, जिसकी बुक है उसकी ओनरशिप के बारे में बता रहे हैं, तो हियर डिटर्मिनर्स इज योर, इधर माई इज द डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर यू कैन से. क्लियर. Now we'll talk about the quantifiers. यहाँ पे you can see quantifiers is not clear. Quantifiers. Quantifiers से हमें साफ पता चल रहा है, quantifiers is the word made from quantity. Okay, quantity से ये word बना है quantifier. अब quantity, जब हम quantity definite भी हो सकती है और indefinite भी हो सकती है. If I'm saying many students are there, many students are absent, so I am not telling the exact number of students, I am just saying many students. So it is telling the quantity of course, but not the definite quantity, right? If I am saying 2 students are absent in my class, so I am telling a definite, a fixed quantity of the students who are absent. So it means 2 is a definite quantifiers. Or if I am saying many, or so many students are absent in the class, so it is not telling ki how much, not exact quantity, but telling the quantity, so unko hum bolenge indefinite quantifiers, right? So here quantifiers are determined that indicates quantity. Of course, there is one pencil on the desk. There is one pencil on the desk. Only one pencil is there on the desk, telling the quantity. We use it before noun. So ये किस तरह के डिटर्मिनर्स हैं, क्वांटिफायर, क्वांटिटी बता रहे हैं जहां पे. ठीक है. हाउ मच मनी हैव यू गॉट, हाउ मच, मच इज अ क्वांटिफायर, बट कैसा क्वांटिफायर है, इंडेफिनिट.
वी आर नॉट गेटिंग द फिक्स्ड अमाउंट, वी आर नॉट गेटिंग टू नो कि कितना मनी की बात हो रही है, ठीक है। देयर आर फ्यू स्वीट्स, फ्यू भी क्या है, हमारी क्वांटिटी बता रहा है, कुछ स्वीट्स हैं, बट कितनी है वी कांट गेट इट, सो इट इज ऑल्सो एन इंडेफिनिट क्वांटिफायर। I do more work, more is here telling the quantity, work की, each of the two boys, तो यहाँ पर भी क्या है, quantity, all the students, this all is telling the quantity of students, of boys. Here work is the noun, boy is the noun, students are the noun, and each, all, more, few, all these things are the determiners. They are working as a determiner in a sentence. And how, मतलब determiners क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, they are telling the quantity of nouns. ओके, सो ऐसे डिटर्मिनर्स को हम बोलते हैं क्वेंटिफायर्स। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हियर आर few questions regarding the determiners. यहाँ पे एक एक्सरसाइज है आपके लिए, जहाँ पे you are getting the question. यहाँ पे आर्टिकल्स, हमारे जो फर्स्ट टाइप है डिटर्मिनर का, उसके क्वेश्चंस you can see here. This is your work to solve these questions. Dash oranges taste is good with breakfast. तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? Dash dog loves to eat bread. यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? Please comment and write the answers there. एंड द नेक्स्ट वन इज possessives. यहाँ पे possessive के आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा possessive determiners will come इसमें, एंड Dad's generosity is a co-part of his personality. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा possessive determiner will come here. डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके दो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर यहाँ पे आएगा इन ब्लैंक्स में. So thank you, and please comment the answers of the questions there below, and thank you so much.